हेलो। चैप्टर सेकंड वायरिंग। इसका एक पार्ट है मर्करी वेपर लैम्प। द मर्करी वेपर लैम्प फर्स्ट इन्वेंटेड इन ईयर 1991 न्यूयॉर्क में। It is high intensity discharge lamp that is commercially available and designed to overcome the disadvantage of fluorescent lamp, which is cold sensitive lamp. The main advantage of this lamp is that produce bright white light with a long rated life of 24,000 hours. The day-to-day application of this lamp can be observed in a street light. A lamp that consists of vaporized mercury to generate light by using an electric arc is known as mercury vapor lamp. Basically, this lamp discharges gas when heated or cooled. The mercury which is present inside the tube is in liquid form at room temperature, which is ionized before generating light. Its wavelength at low pressure range between 184 nanometer to 253 nanometer. Lamp construction. It consists of two electrodes made up of an alloy of tungsten, which is placed together in a medium containing mercury vapor and argon gas. These electrodes are enclosed in an elliptically shaped glass tube made up of silica. जैसा ये साथ में आपको फिगर में दिख रहा है। वर्किंग ऑफ mercury vapor lamp. The mercury vapor lamp and neon gas present in the bulb require high voltage at the starting to illuminate light. When high voltage is applied, we can observe that the neon gas, which was generally in pink color, will change into orange color by heating. It is similar to 100 watt glowing bulb, and it takes 5 to 7 minutes to turn on completely. The igniter, which is present internally, consists of a bimetallic strip and a capacitor which provide high starting voltage. When the bimetallic strip expands on heating, it will short circuited. Then the lamp will be turned on. When the bimetallic strip cools, it disconnected the connection and turns off the lamp. Hence, the connecting the blast and igniter to this lamp, the mercury vapor lamp and neon gas get heated up and extend the bulb inside the illuminate the light. Advantage of mercury vapor lamp. It is very efficient. Its efficiency is very high. Rated life is very high. Output is clear white light. Provide high intensity. It can be available in different color, shape, size, and rating. But it is associated some disadvantage as maintenance of luminaire is poor. It takes 5 to 7 minutes to warm up before fully glowing the bulb, and the cooling time is 5 to 6 minutes. And again, it is very sensitive to voltage. Types of mercury vapor lamp. There are several versions of lamp, but in basic principle is the same. Firstly, develop the low pressure mercury vapor lamp. The lamp and electrical contact on each side of lamp would send electricity through a liquid mercury, which start the lamp. After the lamp would heat fast and mercury become a vapor, the light would intensify as a arc grew stronger in the tube. High pressure mercury vapor lamp. Lamp of today are high pressure lamp with a fused quartz inner discharge tube. The high pressure helps increase efficiency, and this was developed in 1936. After the low pressure lamp came out, the lamp started with a small arc between the starting electrode and main electrode. The arc goes through argon gas, which easily strikes even in cold weather. The little arc heats the tube, and over several minutes, the tube gets hot enough to vaporize the solid mercury stuck to the side. The mercury vaporized creates a strong light between the two main electrodes. To prevent the arc from infinitely getting stronger, a blast limits the current. Some lamps are self-blast
They are an incandescent filament to act as resistance, limiting current. Home lighting fixture usually use the self-blast type, whereas the more expensive but more efficient blast lamp are found in large fixture for municipal lighting. इस ऊपर वाले फिगर में देखिए आप, ये जो लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप है, इसको स्टार्ट करने के लिए जो है ब्लास्ट का यूज़ किया गया है। ब्लास्ट में एक कॉमन टर्मिनल होता है, बाकी वोल्टेज टर्मिनल, और ये इस सप्लाई है, ब्लास्ट है, और ये इसका ब्लास्ट चौक भी बोलते हैं इसको। एक इग्नाइटर है जिसमें कंडेंसर और वो हाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है। ये जो अभी बताया म्यूनसिपलिटी वाले जो है सेल्फ ब्लास्ट लैंप यूज़ करते हैं, जो कॉस्टली आते हैं। ये नीचे वाला फिगर उसका है, सेल्फ ब्लास्ट का है, सेल्फ ब्लास्ट मर्क्यूरी वेपर लैंप। इसमें जो ब्लास्ट मैकेनिज्म है वो यहाँ पर होता है। यहाँ ये हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप का फिगर है। इस फिगर में सब आपको शो कर रखा है। ये 3 इलेक्ट्रोड है, 2 मेन, एक स्टार्टिंग। ये इनर ट्यूब में मर्क्यूरी भरा रहता है। इसको अपन वर्टिकल यूज़ करते हैं, जिससे जब ये ठंडा हो तो मर्क्यूरी एक जगह कलेक्ट हो जाए। अगली बार इसको जब शुरू करना होगा तो दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए सोडियम वेपर लैंप वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। Principally, the sodium vapor lamp consists of bulb containing a small amount of metallic sodium and neol gas and 2 sets of electrodes connected to a pin-type base. The presence of neon gas serve to start the discharge envelope is usually bent into U shape. The lamp operates at temperature very high, and in order to conserve the heat generated and ensure the lamp operating at normal air temperature, the discharge envelope be operated horizontally to keep the sodium well spread out along the tube. Although some small lamp may be operated vertically, lamp cap up. Care should be taken in handling these lamps, particularly when replacing inner U tube. If it is broken and sodium comes in contact with moisture, and fire will result. The sodium vapor lamp is only suitable for alternating current, therefore required choke control. This requirement is met by operating the lamp for a straight filled up tapped auto transformer for an open circuit secondary voltage 470 to 480 volt. The corrected power factor is very low, about 0.3, and a capacitor must be used to improve the power factor. इस सोडियम वेपर लैम्प को हमेशा हॉरिजॉन्टल यूज़ करना चाहिए। अगर वर्टिकल अपन यूज़ करें तो जब बल्ब ठंडा होगा तो सोडियम जो है मेटल सब एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। तो अगली बार जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये बड़ी दिक्कत आएगी, वो ऑन नहीं होगा या बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इस कारण इसमें ये सावधानी रखनी चाहिए। अगर छोटा बल्ब है तो इसको भले वर्टिकली यूज़ कर ले, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज इसको हॉरिजॉन्टल यूज़ करना चाहिए। एक बात ये है। दूसरा, इस बल्ब में क्या पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है यूज़ करने पर, ऑलमोस्ट 0.3, तो इसके कारण इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए इस बल्ब के साथ हमेशा एक कैपेसिटर आपको यूज़ करना चाहिए। और इसको भी स्टार्ट करने के लिए जो एक इग्नाइटर बोलते हैं, जो एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जिसका आउटपुट करीब 470-80 वोल्ट होता है, वो इससे अटैच किया जाता है। उसकी हेल्प से इसको अपन स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सोडियम वेपर लैम्प। तो इसमें 2 तरह के सोडियम वेपर लैम्प आते हैं, लो प्रेशर सोडियम लैम्प एंड हाई प्रेशर सोडियम लैम्प। पहले आप देखिए, लो प्रेशर लैम्प वाज द फर्स्ट सोडियम लैम्प टू बी डेवलप्ड। इट इज़ नॉन एज इज सिग्नेचर मोनोक्रोमेटिक येलो कलर. It is mostly used in Europe since it did not appeal to other market due to its poor color rendering. It is among the most efficient lamp in the world because it uses all current to get to create light at the most sensitive color frequency at the human eye. An incandescent lamp in contrast create light at all frequency from infrared to UV at the other end of the spectrum. मतलब ये पहले जो इनकंडेंसेंट जो लैंप यूज़ करते थे वो क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो उसको इनपुट मिलती है उससे पूरा स्पेक्ट्रम वो बनाता था।
तो जो अपना को विजिबल नहीं होता इंफ्रारेड और यूवी, तो लेकिन ये जो लैंप है येलो कलर सिग्नेचर इसका लाइट है और वो पूरा विजिबली स्पेक्ट्रम में लाइट देता है, तो इसकी एफिशिएंसी बड़ी हाई है, पावर वेस्ट नहीं होता है। लेकिन कलर में ये पूरा प्लीजेंट नहीं है। लेकिन यूरोप वगैरह में जो है वहाँ इनको रोड लाइट पे बहुत यूज होता था ये पहले। द एनर्जी यूज टू मेक नॉन विजिबल लाइट इज ए वेस्ट ऑफ एनर्जी सिंस इट डज नॉट हेल्प द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक लाइट। द LPS लैम्प इज आल्सो कॉल्ड SOX लैम्प। SO यहाँ सोडियम के लिए यूज़ किया गया है। इसके एडवांटेज देखें, ये वेरी एफिशिएंट लैम्प है, जैसे अभी बात हुई, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, पावरफुल लैम्प है और लार्ज एरिया। ये वार्म अप टाइम जो है इसका 5 से 10 मिनट है और अगर इमीडिएटली इसको रीस्टार्ट करें तो ये हो जाएगा। डिसएडवांटेज जो है इसका जो कलर जो है बड़ा ही ख़राब है, ब्रस्ट कलर एंडरिंग, और सोडियम और अगेन जब ये कभी ब्रोकन हो जाए, ये टूट फूट जाए, तो सोडियम जो है वो बहुत ही एक्टिव मेटल है, जो पानी या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके जो आग लग जाती है, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सोडियम इज hazardous मेटेरियल विच कैन बी कंबस्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अगर बल्ब ब्रोक हो गए या उसको कहीं कचरे में डाल दिया तो समस्या हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। हाई प्रेशर सोडियम लैम्प। हाई प्रेशर सोडियम लैम्प इज मोस्टली एम्बिक्यूट लैम्प फॉर स्ट्रीट लाइट और ऑन द planet. The lamp is in improvement over the LPS lamp is that has more acceptable color with the great efficiency of sodium lamp. इस लैम्प में हाई प्रेशर में ये ट्राई किया गया है कि जो कलर जो है और अच्छा आ जाए, तो वो उसमें कलर पुअर था। द बेटर कलर रेंडरिंग कम्स विद ए बिट ऑफ सेक्रीफाइस, इट्स है लेस एफिशिएंसी। लो प्रेशर की तुलना में इसकी एफिशिएंसी कम होती है, लेकिन कलर इम्प्रूव हो गए। जनरल इलेक्ट्रिक डेवलप द हाई प्रेशर लैम्प सोडियम लैम्प। फर्स्ट लैम्प इनका मार्केट इन 1964। इसके एडवांटेज देखिए, गुड एफिशिएंसी है उसकी तुलना में, स्मॉलर साइज देन LPS एंड और फ्लोरोसेंट। मर्करी वेपर लैम्प की जो फिटिंग है फिक्सर, उसमें भी ये फिट हो जाता है, उस हिसाब से इसको डेवलप किया गया है। और इसकी जो लाइफ है लो प्रेशर सोडियम से ज़्यादा होती है। लेकिन डिसएडवांटेज अगर इसके देखें तो कलर अभी भी जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा कलर मिलता नहीं है, कलर वाली इसमें प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, ये सोडियम वेपर लैम्प का एक सिंपल फोटो बताया गया, लो वेपर सोडियम लैम्प जो यू ट्यूब है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड और सोडियम और वो इनएक्टिव गैस भरी रहती है, ग्लास एनवलप में बंद है। इसके टर्मिनल इसको स्टार्ट करने हाई वोल्टेज चाहिए, तो इसके लिए ये जो इसका इग्नाइटर है। एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प रिक्वायर हाई वोल्टेज स्टार्टिंग एंड लो वोल्टेज ड्यूरिंग ऑपरेशन। स्टार्टिंग में आपको हाई वोल्टेज चाहिए, बाद में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए नहीं, इसलिए अपने पैरेलल स्विच ऑफ करें। तो लैम्प start to discharge after 10 to 15 minutes. Voltage falls to 150 volt because of low power factor. To improve the power factor, capacitor connected across the supply. The color of light produced is yellowish. तो यहाँ कैपेसिटर लगाना बहुत जरूरी है इसको पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए। ये 2 फिगर है, ऊपर वाला फिगर लो प्रेशर सोडियम लैम्प का है, नीचे वाला हाई प्रेशर सोडियम लैम्प। ये ऊपर वाला बल्ब वैसे बल्ब यूट्यूब फॉर्म में आते हैं, लेकिन ये स्टेट है, इसमें यहाँ ये 2 इलेक्ट्रोड है, बीच में आपको सोडियम भरा है, यहाँ भरा रहेगा। तो ये अगर ओरिजिनल लगा तो ये छोटे छोटे ये जो टिप दिख रहे हैं यहाँ सोडियम कलेक्ट हो जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब असेंबली सपोर्ट और ये कैप जो यू शेप में, ये बाहर आउटर कैप है ग्लास की, ये वैक्यूम फ्लैक्स टाइप। ये ट्रिप कोल इग्निटर वगैरह ये इसके साथ ही अंदर ही है इसमें। ये हाई प्रेशर सोडियम लैम्प, इसका एक इलेक्ट्रोड ये दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पर है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ट्यूब है जिसमें सोडियम है भरा हुआ।
ये इसका इलेक्ट्रोड का सपोर्ट असेंबली। फिर अपना नियॉन साइन लैम्प। नियॉन साइन लैम्प मोस्टली एडवर्टाइजमेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है। आपने दुकानों पे देखा होगा, जैसे कुछ शॉप वगैरह का नाम लिख रहे हैं, कंपनी का नाम लिख रहे हैं। ये बनाया कैसे जा रहा है? इसको बनाने के लिए क्या है, कंटिन्यूस लेंथ की जो एक जो ग्लास ट्यूब होती है, तो जैसा आपको लेटर बनाना है या डिज़ाइन बनानी है, बीच बीच में बैंड करके, ग्लास ट्यूब को गर्म करके, हीटअप करके उसको बैंड दे देते हैं। अब उस ट्यूब के दोनों एंड पे आप इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, बीच में इनएक्टिव गैस भर दीजिए और वो एज ए ट्यूब लाइट की तरह वो वर्क करेगी, ग्लो होगी, कलरफुल। कलर उस पर डिपेंड करेगा अंदर जो आपने इनएक्टिव गैस कौन सी डाली है, और जो एरिया नहीं दिखाना है उसको ब्लैक पेंट से कवर कर दीजिए, वो छुप जाएगा, वो इल्यूमिनेशन नहीं दिखेगा। तो मान लीजिए इसका स्लाइड में सबसे पहले आप वो फोटो दीजिए, अभी आपको ओपन दिख रहा है, तो ये जैसे ये ट्यूब यहाँ से यहाँ तक आई होगी, है ना, फिर ये ट्यूब यहाँ से वापस इसको यहाँ ले गए, ये ले गए होगा, इस तरह से। जो नहीं दिखाना जैसे इस एरिया को, तो इसको कवर कर दिया जाएगा, तो इस तरह से दिख जाता है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, ये जनरली 5 से 7 फुट की ट्यूब होती है। इससे ज़्यादा अगर ट्यूब चाहिए, मतलब लेटर ज़्यादा है या अगर डिस्प्ले बड़ा बनाना है, तो आपको एक ट्यूब से काम नहीं होगा, दूसरी ट्यूब भी लेनी पड़ेगी। तो नियॉन लाइट्स जो है अपने डिस्प्ले में यूज़ होती है मोस्टली। तो देखिए कैसे काम करती है, क्या है देखें इसको। नियॉन लाइट्स आर वेरी कलरफुल, ब्राइट एंड रिलायबल। इट इज़ यूज इन साइन बोर्ड, डिस्प्ले एंड इवन एयरपोर्ट लैंडिंग स्ट्रिप। जो लैंडिंग स्ट्रिप है क्योंकि दूर से नज़र आ रही थी। ये नियॉन लाइट कंटेंट्स ए टीनी अमाउंट ऑफ नियॉन गैस अंडर लो प्रेशर। इसमें लो प्रेशर में अपने पार्शियल वैक्यूम होता है और ये इनएक्टिव गैस बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड टू एनर्जी टू स्ट्रिप इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम नियॉन एटम। तो एनर्जी देते हैं जब इलेक्ट्रोड पे जो नियॉन गैस आपकी आयोनाइज होगी और वो फोटोन क्रिएट करेगी। वो फोटोन जो है वो ट्यूब के ऊपर फास्फोरस जो मटेरियल लगा है उससे रिएक्ट करके आपको विजिबल लाइट देता है। आयंस आर अटैक्ड टू द टर्मिनल ऑफ द लैम्प, कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। Then light is produced when neon atom gain enough energy to become excited. When an atom returns to a lower energy state, it releases a photon. ये जो फिजिक्स में आपने पढ़ा गैस से डिस्चार्ज, उसके हिसाब से डिटेल में इसका मैकेनिज्म बताया है। मान इसमें आपको एक ग्लास ट्यूब दिख रही है, इसमें नियॉन गैस भरी है। आप जब ये इसके इलेक्ट्रोड जब इसको आप सप्लाई देंगे तो ये नियॉन गैस जो है आयोनाइज होने शुरू हो जाएगी। तो मान लीजिए ये नियॉन गैस है, ये जो ग्रीन में दिखती है, तो इसमें से सम पार्ट्स कुछ जो है इसके एटम जो है आयोनाइज हो जाए, तो ये पॉजिटिव आयन जो ब्राउन कलर से दिख रहे हैं, और ये छोटे छोटे ब्लू ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव एनोड की तरफ, और ये पॉजिटिव आयन जो है जाएंगे कैथोड की तरफ। और ये बीच में कुछ जो अभी आयोनाइज नहीं हुई है वो वैसे ही तैर रही है पार्शियली वैक्यूम में। लेकिन धीमे धीमे ये पूरी गैस जब आयोनाइज हो जाएगी तो अपने को यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा। इस तरह से अपन इसका जो है गैस डिस्चार्ज का मैकेनिज्म समझ सकते हैं। नियॉन लैम्प इज लो प्रेशर गैस डिस्चार्ज लैम्प। इट इज़ कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प। द टर्म नियॉन लैम्प इज यूज टू डिस्क्राइब CCFL। नियॉन लैम्प को कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प भी कहते हैं। विद ए ट्यूब डायमीटर लेस दैन 15 मिलीमीटर। ड्यू टू ग्रेट पॉपुलरिटी एंड ऑबिक्विटी ऑफ द नियॉन लैम्प, वी कंसिडर द वन ऑफ द 12 मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प इन हिस्ट्री। इसकी एडवांटेज देखें तो इसकी ल्यूमिनियस एफिशिएंसी बड़ी हाई होती है, अच्छी परफॉर्मेंस है। मोर रिलायबल इन कोल्ड वेदर दैन हॉट कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट, यानी ठंड में भी अच्छे से काम करती है। मोर रिलायबल देन LED फॉर एयरपोर्ट रनवे लैंडिंग लाइट। LED लाइट से भी अगर आप वहाँ सिग्नलिंग करें तो उससे भी इसकी अच्छे ज़्यादा विश्वसनीयता है। इस एडवांटेज अगर देखें तो शेप ऑफ ट्यूब ये जो लिमिटेशन, ये ट्यूब का जो शेप है, लेंथ है, वो लिमिटेशन आती है। दूसरा ये एक और डिसएडवांटेज नज़र आएगा, आर्गन इज नॉट रिलायबल इन कोल्ड टेम्परेचर। ये कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट ट्यूब है नियॉन लाइट्स, लेकिन उसमें अगर आर्गन अगर आप यूज़ करें तो रिलायबिलिटी कम हो जाती है। एक और इसके साथ डिसएडवांटेज एसोसिएटेड है, इसमें जो लाइट मिलती है वो डिफ्यूज़ मिलती है।
नॉट गुड फॉर फोकस्ड बीम, आपको फोकस्ड लाइट नहीं मिलती है। Working principle of neon lamp. The neon lamp is made of glass tube containing mixture of neon and argon gas. There are two electrodes, one positive and other negative. Voltage rises and arc is stuck between argon gas is used to another fluorescent as well because of lower striking temperature. After the argon strike, an arc in the neon gas is warmed and current is able to flow through the neon gas, ionizing more atoms as the current rises. Blast is necessary to limit the current since resistance will continue to drop as current rises. Term neon side is described CCFL of all color. Other color may not use neon. They may use helium, xenon or other noble gases. Most of other color work by using mercury vapor. The type of lamp was invented 3 years after the neon lamp. First argon strike the arc. This heat up the vaporized mercury stuck to the side. The arc then goes through mercury vapor which create UV light. UV light excites the colored phosphor and you will get your desired colored light. The mercury vapor lamp is one of the main 12 kind of lamp and you can read more about it. We recommend you continue reading below. Moving on, mercury vapor lamp. The neon lamp work on AC or DC power. When using the lamp with DC, only one of the electrode will glow since ions are formed of that electrode. AC power provide a nice uniform look with a glow evenly distributed. इसको AC पे अगर करें तो यूनिफॉर्म ग्लो मिलता है। DC अगर आप देंगे तो आप जैसे जानते हैं जो गैस के जो पॉजिटिव आयन है वो एक तरफ जाएंगे तो उसी तरफ आपको ग्लो मिलेगा और इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएंगे तो उसके एक तरफ ही ग्लो ज़्यादा मिलेगा। तो अपन सभी कलर के लिए नियॉन कहते हैं, लेकिन नियॉन खाली आपको रेड कलर ही देती है। अलग अलग कलर के लिए जो दूसरी नोबल गैस है जो यूज़ की जाती है, अब किस गैस के कॉम्बिनेशन कौन से कलर की आपको ये नियॉन साइन की लाइट मिलती है वो इसमें आप देखिए कलर्स के बारे में। while in the past a great variety of gas and phosphor we used to create sign of various colors. Today there are more effective phosphor which will work simply with mercury. The mercury vapor is more efficient lamp and is desired over other gas filling like xenon and helium. A lamp with a variety of noble gas, जैसे रेड कलर चाहिए तो आप इस नियॉन जो अपने साइन लैम्प है इसमें आप नियॉन गैस यूज़ करेंगे, नियॉन नोबल गैस। अपने को रेड ओपेक क्यों चाहिए तो नियॉन गैस के साथ रेड फॉस्फोर यूज़ करिए, थोड़ी आर्गन होगी और थोड़ा उसमें मरकरी का भी कॉम्बिनेशन डाला जाएगा। ब्लू ग्रीन येलो ये जो है ये कलर उस पर डिपेंड करे जो आप फॉस्फोरस मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं वो उस कलर का हो। फॉस्फोरस विद आर्गन और मरकरी गैस। आर्गन स्टार्ट था आर्गन तो इसमें जो आर्गन तो आप इसमें काम आएगी आर्ग को स्टार्ट करने में और उसको वार्म अप करने में। फिर वो मरकरी जब आयोनाइज हो जाएगा यूवी लाइट मिलेगी तो ये यूवी एक्टिवेट करेगा। अब जो आपने कलर फॉस्फोरस जो यूज़ किया है, पिंक वाइट और वाइट के लिए हीलियम गैस यूज़ करते हैं। ऑरेंज के लिए जो नियॉन गैस विथ येलो फॉस्फोरस। वैसे खाली आप नियॉन लेंगे और आर्गन लेंगे तो कलर रेड मिलेगा। येलो के लिए अपन हीलियम और येलो फॉस्फोरस यूज़ करते हैं। और क्रिप्टॉन जो है वाइटिश ग्रीन के लिए यूज़ करते हैं और जिनॉन ब्लूश वाइट के लिए। इसमें आपको ये कलर कौन से नॉवल गैस कौन से कलर के नियॉन साइन मिलती है ये लिखा बताया और ये इनका कलर का डिस्प्ले आपको इस तरह से मिल रहा है। थैंक यू।